اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکیٹ میں اڈانی، ٹاٹا، برلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزاروں روپے کما کر دے سکتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا خالد سیف اللہ، ان کے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہم شیئر مارکیٹ سکھاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں؟ اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر غزہ فلسطین کے حالات کو لے کر آ رہی ہے جو خون کے آنسو رلا رہی ہے۔ جی ہاں، ایک ہفتے کے اندر اندر اسرائیل نے 5 اسکولوں پر بھی بمباری کی ہے جن میں درجنوں فلسطینیوں کے شہید ہونے کی اطلاع ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو جنگ غزہ فلسطین میں چھڑی، اس جنگ کے نتیجے میں غزہ میں 40 ملین ٹن ملبہ جمع ہو گیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ رہائشی عمارتیں کتنی تباہ ہوئی ہے، جن کو ہٹانے میں 40 ملین ٹن ملبہ جمع ہو گیا ہے، جن کو ہٹانے میں 15 سال لگیں گے۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینی مسلمانوں کی آبادیوں میں ساتھ ساتھ اسکولوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ، ہاسپٹل کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے، جہاں جنگ زدہ فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اسرائیلی طیاروں نے، اسرائیلی پلینوں نے 5 اسکولوں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں وہاں پناہ گزین درجنوں فلسطینی شہید اور 80 کے قریب لگ بھگ زخمی ہوئے ہیں۔ گزشتہ کل جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اس میں بتایا گیا کہ 9 جولائی کو خان یونس کا جو علاقہ ہے وہاں کے اسکول کے قریب نصب خیموں پر شدید بمباری کے نتیجے میں 29 فلسطینی شہید ہوئے، جس میں 4 اور بھی بمباری ہوئی، جس میں الگ ایک جگہ پر 4 افراد شہید ہوئے۔ یعنی لگاتار بمباری کا سلسلہ جاری ہے اور موت لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ خان یونس میں ایک بھی عمارت ایسی نہیں ہے خان یونس کے علاقے میں جو اب تک محفوظ ہو۔ اسکول، میڈیکل، سڑکیں، صفائی ستھرائی اور دیگر اہم انفراسٹرکچر سبھی کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ غزہ میں 7 اکتوبر کو سے جو جنگ شروع ہوئی ہے، اب اس میں تقریباً 40 ملین ٹن ملبہ جمع ہو گیا ہے۔ اتنی رہائشی عمارتوں پر بمباری کی گئی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر مکۃ المکرمہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، سال میں پہلی بار سورج آج خانہ کعبہ کے
ऐन ऊपर होगा। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब की फलकियाती सोसाइटी का कहना है कि आज सूरज सऊदी अरब के मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:27 पर बिल्कुल ऐन खाना काबा के बैतुल्लाह के ऊपर होगा। ऐसी सूरत हाल में सूरज खाना काबा के मुतवाजी आ जाता है, जिससे खाना काबा का साया दिखाई नहीं देता। सूरज के खाना काबा के ऐन ऊपर आने से पूरी दुनिया के मुसलमान बगैर कुतुबनुमा के भी क़िबले की दुरुस्त सिमत का तयन कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि सूरज साल में 2 बार, एक बार मौसम गर्मा और दूसरी बार मौसम सर्मा में खाना काबा के ऐन ऊपर आता है। और सऊदी अरब से यह भी खबर आ रही है कि वहां गर्मी की शदीद लहर आखिरी हफ्ते तक जारी रहेगी, यानी जुलाई के आखिरी हफ्ते तक। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज की जानिब से अहम बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि ममलिकत सऊदी अरबिया में गर्मी की शदीद लहर इस महीने के आखिरी हफ्ते तक जारी रहेगी। नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, इमरान खान की पार्टी पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। PTI पर पाबंदी का मामला सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। तमाम शवाहिद मद्देनजर रखकर वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर केस करेगी। हुकूमत पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ पार्टी पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। वफाकी वजीर इत्तलाआत ने कहा कि तमाम शवाहिद सबूत दलाइल मद्देनजर रखकर वफाकी हुकूमत PTI पर केस करेगी। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर इत्तलाआत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम PTI पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। PTI पर पाबंदी का मामला सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। तमाम शवाहिद मद्देनजर रखकर वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर केस करेगी। और पाकिस्तानी हुकूमत ने यह भी कहा है कि पाबंदी के लगाने के हवाले से तमाम कानूनी तैयारियां मुकम्मल है। हो सकता है कि काबीना के अगले इजलास में इस पर बात हो। आर्टिकल 17 मुल्क मुखालिफ जमातों पर पाबंदी का इख्तियार हुकूमत को देता है। उनका कहना था कि फॉरेन फंडिंग, 9 मई और दहशतगर्दों को वापस लाना, ये सब कुछ आपने किया है। साइफर का ड्रामा रचा गया और कहा गया कि अमेरिका ने धमकी दी है। इसके बाद एक ऑडियो क्लिप आया कि हमने साइफर से क्या खेलना है। तो इसी तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए पाकिस्तान की हुकूमत का कहना है कि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है PTI पर पाबंदी लगाने की। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ और उस मौके पर उस हमले में कुछ लोग तो मर गए हैं मगर ट्रंप जख्मी हुए। ट्रंप पर हमला होने के बाद आलमी रहनुमाओं ने, यहाँ तक कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई मुल्कों के रहनुमाओं ने निंदा की, अफसोस का इजहार किया और उस मामले को कंडम किया कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमारे यहाँ के भारत के मौलाना जाफर पाशा वगैरह ने बयान दिया है, हैदराबाद के अमीर शरीयत जो तेलंगाना वगैरह के, उन्होंने कहा है कि ट्रंप पर हमला हुआ तो पूरे आलमी शख्सियात बोलने लग गई, मगर 9 महीने से लाखों फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इजराइल की दरिंदगी, हैवानियत, बर्बरता और मजलूम फलस्तीनियों के हक में आज तक ये बेशरम कोई बोलने को तैयार नहीं है। खैर, जख्मी ट्रंप जो हमले में जख्मी हुए वो कन्वेंशन में शिरकत के लिए पहुंच गए। हमले में जख्मी होने वाले, कातिलाना हमले में जख्मी होने वाले ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में शिरकत के लिए पहुंच गए हैं। और खबरें आ रही है, पेंटागन का ये बयान आया है कि ट्रंप पर हमला करने वाले के घर से बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ है, मिला है। पेंटागन ने बयान में ये कहा कि ट्रंप पर फायरिंग करने वाले हमला आवर थॉम्स, जिसकी उम्र 20 के करीब बताई जा रही है, उसका कोई फौजी बैकग्राउंड नहीं था और न ही उसने फौजी तरबियत हासिल की थी, मगर उसके घर से ये तमाम चीज़ों का मिलना ये बड़ा ख़तरनाक हमला बताया जा रहा है। और उसका जहन कितना ख़तरनाक होगा इस पर भी अब लोग बहुत बात करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उसके घर की तलाशी जब ली गई तो बम बनाने का सामान मिला और उसकी गाड़ी में भी बम धमाका खेज मवाद मौजूद था जो ट्रंप की रैली के मकाम से नज़दीक पार्क की हुई थी। और अब तक तहकीकात से ये बात सामने भी आई है कि हमला आवर का कोई साथी नहीं था, उसने ये हमला अकेले किया। हमले की हर पहलू से तफ्तीश जारी है ताकि हमले के मकासद सामने आ सके।
नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर जो है फ़लस्तीनी मजलूमों को लेकर ही आ रही है। आप जानते हैं कि कई फ़लस्तीनियों को इजराइल ने कैद किया, लेकिन खबरें आ रही है कि फ़लस्तीनी कैदियों के साथ इंतहाई बदतरीन सलूक इजराइल ने किया है। इजरायली दरिंदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में 80,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। ये भी रिपोर्ट्स है कि इजरायली हमलों में 8,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं और शोहदा में ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत है, जिसमें दूध पीते फ़लस्तीनी बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे बेशुमार ख़ानदान हैं जिनका मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया है। गज़ा की 23 लाख आबादी में से 19 लाख आबादी बेघर हो गई है। गज़ा के अस्पतालों में अक्सर हॉस्पिटल्स को इजरायली फोर्स ने ज़मींदोज़ कर दिया है। साथ ही स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ की इमारतों को भी इजराइल ने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 7 अक्टूबर से अब तक सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक तो 38,000 और 50,000 के करीब बताए जा रहे हैं, जबकि आज से 8 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि 2 लाख के करीब फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। और गज़ा में फ़लस्तीनियों पर इजरायली दरिंदगी का सिलसिला अभी भी जारी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में इजराइल ने तबाही जो मचाई है उसमें तकरीबन 60 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लेकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।